Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine and enjoying your lectures. It is the first lecture after our Eid holidays. Today we will study chapter number 1. The name of the chapter is Quadratic Equation. This is week 6, lecture number 20, and date is 29th. So today we will study quadratic equations. Before this we have finished our theorems part, that is we have studied chapter number 8, 9, 10, 11 and 12. So after that section, that is section C, now we are going to start our the remaining sections, that is section A and B. So in this section there are 14 parts and you have to do or you have to attempt 9 parts. Each part has 4 marks and section B will be of 36 marks. So the first chapter is quadratic equations. So we must know what is meant by a quadratic equation. So here I have defined an equation in which the maximum exponent of the variable is 2 is called quadratic equation, or an equation in which the highest power of the variable is 2 is called a quadratic equation. Here I used maximum exponent and here I used highest power. Both are the same thing. And similar, here we have used highest power and here a maximum exponent. So maximum and highest both are the same thing. Exponent and power both are the same thing. So the highest exponent of the variable is 2. When highest exponent of the variable is 2, then the equation is called a quadratic equation. For example, ax square plus bx plus c equal to 0, where a must not be equal to 0. This is the general form or the standard form of the quadratic equation, which is ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. This condition must be imposed, because if a becomes 0, then this part will be vanish and the equation will become a linear equation. So therefore this condition must be imposed, that a must not be equal to 0. First term will be square term, the second term will be linear term, and the third term will be constant term, and on the right side it will be 0. So this form is called standard form or general form of the quadratic equation. I have written here the above equation is standard or general form of the quadratic equation. If the term bx is not present, then the equation is called pure quadratic equation. If ax square plus c equal to 0, that is if this term, that is bx, that is the linear term of the variable, is absent, then the equation is called pure quadratic equation and the form will become as ax square plus c equal to 0. इसका मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. दोबारा ज़रा समझ लें इसको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. ऐसा इक्वेशन in one variable or in two variable, it may be one variable, it may be two variable. So here we are discussing only the one variable, a single variable. So ऐसा equation जिसमें variable की maximum power या highest power जो है वो 2 हो, that is called quadratic equation. So general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, providing that a is not equal to 0.
ये इसका स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म कहलाता है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास स्क्वायर टर्म होगा, दूसरा टर्म जो है वो लीनियर टर्म होगा, तीसरा टर्म जो है वो कांस्टेंट होगा और राइट साइड पे 0 होगा। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को फिर हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या इसका जनरल फॉर्म है। अगर ये bx इसमें मिसिंग हो, मतलब ऐसा इक्वेशन हो जिसमें ये टर्म ना हो, यानी लीनियर टर्म एग्जिस्ट ना कर रहा हो, हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म फिर इस तरह बन जाएगी कि ax² प्लस c इक्वल टू 0। तो फिर इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। फिर इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब to solve a quadratic equation we have 3 different methods। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स है। अब सॉल्व करने का क्या मतलब है? सॉल्व करने का मतलब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है, क्वाड्रेटिक जिसके लिहाज से है, उस वेरिएबल की जब हम वैल्यू मालूम करते हैं तो इस प्रोसेस को हम सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सो फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स। नंबर फर्स्ट, बाय फैक्टराइजेशन, नंबर सेकंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड नंबर थर्ड बाय अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। These are the 3 different methods to solve a quadratic equation। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम इक्वेशन की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं, कि जो हमारे पास हम वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं तो इस प्रोसेस को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल होगा कितने? 3 मेथड से पॉसिबल होगा, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब अगर पेपर में मेंशन किया गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, देन यू आर बाउंड टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। द रिमेनिंग मेथड विल नॉट बी वैलिड देयर। अगर आपको फैक्टराइजेशन का पेपर में कहें कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो फिर ये बाकी दोनों मेथड वैलिड नहीं होंगे, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने मस्ट उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर कहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना होगा, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला कहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना होगा। अदरवाइज अगर आपको जस्ट कहें कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर आपकी मर्जी है, इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मेथड मेंशन करें तो then you are bound to find the solution by that specific method। okay, next अब हम इसको एक्सरसाइज पे आते हैं कि एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन क्या है। look at this is chapter number 1 quadratic equations exercise 1.1 question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है इसको क्या करें? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसको स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में लिख लें और फिर बताएं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये आपने बताना है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि x + 7 × x - 3 = -7। ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके। सो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपने 8th क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स या डिफरेंट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा है। तो ये दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x multiplied by x we get x², x multiplied by -3 we get -3x, 7 multiplied by x we get +7x, 7 multiplied by -3 we get -21 and equal to -7 as it is। Now arrange them। अब हम इसको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल के लिहाज से। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हमारे पास क्या आएगा? x², फिर -3x + 7x we get +4x, -21 as it is, और ये जो -7 यहाँ पे था, शिफ्ट दिस
to the left hand side. When we are going to shift, then the sign will be changed. ये बात याद रखें कि अगर हम किसी भी टर्म को लेफ्ट साइड से राइट पे या राइट से लेफ्ट पे लेकर आते हैं तो साइन विल बी चेंज. अगर प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा. जैसे यहाँ पे ये माइनस था तो जब हम शिफ्ट करते हैं तो ये +7 हो जाएगा और इक्वल टू वहाँ पे 0 बच जाएगा. Now further step will be x square as it is, 4x as it is, -21 plus 7 we get -14 equal to 0. So this is the standard form of this quadratic equation. हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस किया जो उस हमसे रिक्वायर्ड था कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया. अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू पॉइंट आउट द पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमने ये पॉइंट आउट करना है कि क्या ये पेवर क्वाड्रेटिक है या नहीं है. तो देखिए यहाँ पे 4x टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस इज नॉट अ पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देखिए दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इज नॉट पेवर क्वाड्रेटिक बिकॉज ऑफ द टर्म 4x. अगर आपसे कोई पूछे कि ये पेवर क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है तो आप बता सकते हैं कि 4x टर्म की वजह से ये पेवर क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि ये 4x टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए. अगर ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये पेवर क्वाड्रेटिक नहीं होगा. सिमिलर सेकेंड पार्ट देखें, सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक. लेकिन इक्वेशन डिफरेंट है. अब सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करें. मैंने फोर्थ पार्ट लिया है, x + 4 over x - 2 + x - 2 over x + 4 = 0. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x into x - 1 वी गेट. क्यों? क्योंकि हमने ये फ्रैक्शंस खत्म करने हैं. फ्रैक्शन कैसे खत्म होंगे? बाय टेकिंग LCM ऑफ दिस फ्रैक्शन x into x - 2. दिस विल बी द LCM. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ साइड विद दिस LCM. सो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म में x - 2 खत्म हो जाएगा. इस x + 4 के साथ x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x into x + 4 बन जाएगा. और इस टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x टर्म खत्म हो जाएगा तो x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और +4 इसके साथ x into x - 2 और राइट साइड पे 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इक्वल टू 0. सो सिंप्लीफाई दिस. ये आ जाएगा x² + 4x. अगेन ये x - 2 होल स्क्वायर फार्मूला है तो a² - 2ab + b होल स्क्वायर. सो x² - 4x + 4 इससे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई करें तो 4x² - 8x = 0. नाउ सिंप्लीफाई दिस टर्म. दिस इक्वेशन विल फर्दर रिड्यूस टू, देखिए x² + x², 2x² + 4x² we get 6x². Similarly, 4x minus 4x will cancel each other and here we get -4x as it is. ये यहाँ पे आ जाएगा और +4 as it is आ जाएगा. तो ये इक्वेशन इस तरह सिंप्लीफाई होगा कि 4x minus 4x जो है वो कैंसिल होंगे, x² + x² 2x और +4x ये 6x² बन जाएगा, -8x as it is आ जाएगा और +4 as it is आ जाएगा. तो ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया. हमने रिड्यूस किया इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा. अब यहाँ पे चूंकि -8x है तो ये पेवर क्वाड्रेटिक नहीं है. वैसे आपके बुक में इसके आंसर में ये पेवर क्वाड्रेटिक लिखा है लेकिन पेवर क्वाड्रेटिक नहीं है, उनका आंसर गलत है, ये याद रखें. -8x अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये पेवर क्वाड्रेटिक नहीं होगा. This is a standard form of the quadratic equation and is not pure quadratic because of the term -8x. Next question देखिए, ये भी सेम इसी तरह क्वेश्चन है. कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक. तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? LCM से. x into x + 4 इसका LCM होगा. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x into x + 4 वी आर गोइंग टू गेट, ये x + 4 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, x + 3 के साथ ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा. x - 5 के साथ x + 4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, x ख़त्म हो जाएगा. राइट साइड पे 1 के साथ ये x into x + 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंप्लीफाई करूँगा तो x² + 3x माइनस ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करें. ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस है
तो माइनस के बाद ये साइंस चेंज होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज लिख लिया और ब्रैकेट लगा लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए x मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 वी गेट माइनस 20, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये देखें माइनस 5x प्लस 4x, यहाँ से माइनस x आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज, ये माइनस अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस ब्रैकेट के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस x आ रहा है लेकिन ब्रैकेट से पहले माइनस है, वो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x हो जाएगा, और ये माइनस 20 था तो ये इस नेगेटिव साइन की वजह से ये प्लस 20 हो जाएगा। इसको यहाँ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस 4x है तो माइनस 4x हो जाएगा और इक्वल टू राइट साइड पे 0 बच जाएगा। अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर और एक माइनस एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू गेट ये 3x प्लस x, क्या आ जाएगा हमारे पास 4x, फिर यहाँ से प्लस 20, ये माइनस x एज इट इज और ये माइनस 4x एज इट इज। अब यहाँ पे माइनस 4x और प्लस 4x एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 20 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं अरेंज कर लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0, ये x को यहाँ शिफ्ट कर ले तो प्लस और 20 को यहाँ शिफ्ट कर ले तो माइनस, यहाँ पे 0 बच जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0, ये फाइनल फॉर्म हमारे पास, इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये फाइनल फॉर्म बन जाएगा। और ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है, x की पावर 2 है, x की पावर 0 है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास वो लीनियर टर्म मिसिंग है, यानी x पावर 1 जो है या x वाला टर्म जो है इसमें मिसिंग है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो एंड में फिर आप ये लिख सकते हो कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इज पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज लीनियर टर्म इज नॉट देयर। लीनियर टर्म मीन the term which involve x only, ठीक है, तो वो टर्म इसमें मिसिंग है, इस वजह से ये क्या होगा, ये हमारे पास पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी इसके पार्ट्स खुद कर ले, जो 3 पार्ट्स मैंने किए 3 आप खुद कर लोगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको कहते हैं कि फैक्टराइजेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व करें। इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमें कह रहा है कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम बाउंड है, किसी और मेथड से हम नहीं सॉल्व करेंगे, जस्ट फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या करूंगा, देखिए फैक्टराइजेशन में फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट माइनस 20x स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे माइनस 1x है, तो माइनस 1 के आपने ऐसे दो फैक्टर्स मालूम करने हैं जिनकी प्रोडक्ट से माइनस 20x स्क्वायर आ जाए और जिसको प्लस माइनस करने से आपके पास माइनस 1x आ जाए। तो देखिए वो हमारे पास ये है 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 20 बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20 बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20 बन जाएगा। लेकिन हमारे पास ये 5 और 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। देखिए माइनस 4x प्लस 4x वी विल गेट माइनस x, और माइनस 5x मल्टीप्लाइड बाई 4x जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 20x स्क्वायर आ जाएगा। सो इस इक्वेशन को हम इस तरह फिर लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 था, तो इस माइनस एक्स को हम ब्रेकअप करते हैं, यानी इसके ऐसे दो फैक्टर्स मालूम करेंगे जिनकी प्रोडक्ट से माइनस 20 आ जाएगा और प्लस माइनस से माइनस 1 आ जाए, तो वो हमने मालूम कर लिया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, ग्रेटर के साथ माइनस आएगा और स्मॉलर के साथ प्लस आ जाएगा। तो जब ये दोनों आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स बन जाएगा और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 20 बन जाएगा। अब द फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन कर लें तो x माइनस 5 और यहाँ इन दोनों में से 4 कॉमन कर ले प्लस 4, तो ये x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है
तो x माइनस 5 कॉमन कर ले तो x प्लस 4 आपके पास बच जाएगा इक्वल टू 0। ये बात याद रखें कि जब हम ये फैक्टर्स चूज करते हैं, सही चूज करते हैं, तो फिर हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते तो इट मीन्स कि हमने जो फैक्टर चूज किए वो सही नहीं होंगे। ठीक है, उसको फिर आप एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर ले कि आपके फैक्टर सही नहीं बने हैं। अब आइदर ये देखिए दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो और बोथ इक्वल टू जीरो, सो x माइनस 5 इक्वल टू जीरो और x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अगर ये ट्रू है तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, अगर ये ट्रू है तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। सो माइनस 4 एंड प्लस 5 जब हम सेट के अंदर लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन सेट। ये हमने इस प्रोसेस को हम सोल्यूशन कहते हैं। हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, जो रिक्वायर्ड था वो हमने मालूम कर लिया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, पार्ट 3 है। 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। रीअरेंज कर ले तो 17x स्क्वायर एज इट इज, ये 32 को वहाँ शिफ्ट कर ले प्लस 32x हो जाएगा, ये 4 को वहाँ शिफ्ट कर ले माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो वो हमने बाद उधर लिख लिया। सो 17x स्क्वायर, अब इसके दो फैक्टर्स बना लें। जैसे 17 4 68 होता है, अब 32 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाए जिनकी प्रोडक्ट से 68 माइनस 68x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने से 32 आ जाए। तो वो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स है, 34 और माइनस 2। 34 और माइनस 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 68 आ जाएगा, और अगर आप उसको प्लस कर ले या माइनस कर ले तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 32 आ जाएगा। फर्दर ये क्वेश्चन इस तरह है, देखें 17x इसमें से कॉमन किया तो x प्लस 2 आ गया, माइनस 2 कॉमन किया तो x प्लस 2 आ गया। अब x प्लस 2 कॉमन कर ले तो 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू है तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, और अगर ये ट्रू है तो 2 को उधर शिफ्ट कर ले, 17x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, या x इज इक्वल टू 2/17। तो ये हमारे पास फिर दो रूट्स आ गए, माइनस 2 और 2/17। सोल्यूशन में लिख ले, सोल्यूशन सेट के अंदर लिख ले, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ये जो वैल्यूज है हमारे पास ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए हम इसको रूट्स कहेंगे, और जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे उसको हम फिर एक्सट्रेनियस रूट्स कहते हैं। ये बाद में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब देखिए 152 बड़ा नंबर है, जब आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 152x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये नंबर बड़ा है। अब माइनस 11 के कैसे फैक्टर्स हम मालूम करें, तो आसान तरीका है, देखें इसको फैक्टराइज कर ले, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 2 2 और 19। अब इससे बनाए देखें, 2 2 4 4 4 2 8 और 19 8 152। 19 और 8 की सब्ट्रैक्शन अगर मैं कर लूँ तो 11 आ सकता है। सो फैक्टर्स हमारे पास इस तरह हो जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x 152 अरेंज कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ माइनस 11 है तो बड़े वाले फैक्टर के साथ माइनस आएगा और स्मॉलर फैक्टर के साथ प्लस साइन आएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन कर ले तो x माइनस 19 बच जाएगा, और इन दोनों में से प्लस 8 कॉमन कर ले तो ये बन जाएगा x माइनस 19। सो x माइनस 19 को कॉमन किया, अब हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे प्लस 8, तो x माइनस 19 इंटू एक्स प्लस 8, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे इक्वल टू 0। सो आइदर x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19 हो जाएगा या x इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। सो माइनस 8 और 19 को सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लें, दैट विल बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये थोड़ा सा डिम है तो, लेकिन आप इसको दोबारा ज़रा, मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन आप खुद करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या फैक्टर्स इसके आने हैं। तो ये हमारे पास था फैक्टराइजेशन का मेथड, कि फैक्टराइजेशन से हम इक्वेशन को कैसे मालूम करते हैं, सोल्यूशन कैसे मालूम करते हैं, कि पहले टर्म को और आखिरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें और मिडल वाले टर्म को इस तरह ब्रेकअप कर ले कि इसके जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं उनकी प्रोडक्ट से आपके पास क्या बन जाए, उनकी प्रोडक्ट से आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बन जाए, और सम या डिफरेंस से माइनस, यानी यहाँ पे जो टर्म होगा वो बन जाए। तो ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन मेथड है।
तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम जो सोल्यूशन मालूम करते हैं उनके पास हमारे पास दो रूट्स आएंगे। ये याद रखें कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हमेशा दो रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होंगे। जो पावर 2 है इसकी डिग्री 2 है, तो इस वजह से इसकी रूट्स 2 होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन है तो फिर एक इक्वेशन होगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे। तो ये याद रखें कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमेशा 2 आएंगे। अगर सपोज आप सॉल्व करते करते आपके पास रूट्स 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये रूट्स जो है वो रिपीटेड रूट्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि सेम रूट्स है, इक्वल रूट्स है, यही 2 दफ़ा जो है ये रूट्स आएगा। तो इस वजह से फिर वहाँ पे वो 1 आता है। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे रूट्स जो है वो 2 आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये 4th पार्ट तक मैंने कर लिया। इसके बाद जो है वो आप खुद करें, जो पार्ट्स इसके रह गए वो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। ठीक हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25/12। तो क्या करें, एलसीएम में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई क्या, ये एलसीएम क्या होगा इसका, 12 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि सारे इन कॉमन फैक्टर्स है तो एलसीएम इन कॉमन फैक्टर का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दोज टर्म्स। सो 12x इंटू एक्स प्लस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट। यहाँ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा और x प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो क्या बन जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो 12 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर। जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 1 कैंसिल होगा, 12x इंटू एक्स हो जाएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 25x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 25x, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25x। ये इसके साथ 12 मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12x स्क्वायर प्लस ये 12 और ये मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, और ये 12x स्क्वायर एज इट इज, ये 25x स्क्वायर प्लस 25 एज इट इज। अब इसको अरेंज कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। ये देखें 12x स्क्वायर, यहाँ से 24x स्क्वायर प्लस 24x एज इट इज, ये 12 एज इट इज, 25x स्क्वायर एज इट इज और 25x एज इट इज। इसके साथ यहाँ पे x है, मैंने गलती से नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इसके साथ x होना चाहिए। फर्दर ये आ जाएगा हमारे पास 24x माइनस 25x प्लस 24x माइनस 25x प्लस 12 इक्वल टू 0। यानी राइट साइड पे जो दो टर्म्स थे 25x स्क्वायर और 25x, उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो हमारे पास ये बन जाएगा। देखिए इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस एक्स और प्लस 12 एज इट इज। अब चूंकि फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो हमारा कोशिश होता है कि फर्स्ट टर्म के साथ हम पॉजिटिव साइन लेकर आए, तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस एक्स और ये -12 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन करके, -1 कॉमन करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, या -1 से सिंपल मल्टीप्लाई करें, तो ये इसका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -12x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ +1 है तो +1 के दो ऐसे फैक्टर्स मैंने चूज करने हैं जिनकी प्रोडक्ट से -12x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस से इसका +1 आ जाए, तो वो टर्म्स हमारे पास ये है 3 और 4 हो गए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इसके साथ प्लस साइन है तो ग्रेटर फैक्टर के साथ प्लस आएगा और स्मॉलर फैक्टर के साथ माइनस आएगा। इन दोनों में से x कॉमन किया तो x प्लस 4 आ जाएगा, इन दोनों में से -3 कॉमन किया तो x प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स यानी दोनों जो ब्रैकेट्स हैं x प्लस 4 इसमें से कॉमन कर लें, यहाँ पे मेरे पास x बच जाएगा और यहाँ पे -3 बच जाएगा इक्वल टू 0। Now, when the product of two terms is equal to 0, either one is equal to 0 or the second one is equal to 0. So x minus 4 equal to 0 or x minus 3 equal to 0. If this is true, then x is equal to 4. And if this is true, then x is equal to 3. So x is equal to 3 and x is equal to 4 are the required roots. इसको जब सोल्यूशन सेट में बंद करूंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 and 4। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप जो है थ्रू
यूट्यूब चैनल पे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, या फिर जो जूम की क्लास हमारे मंडे और ट्यूसडे को होती है उसमें फिर आप इसमें पूछ सकते हैं। अपने पास जो है ये लेक्चर आप सुन लें अच्छी तरह और ये सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। जो जो प्रॉब्लम्स है अपने पास नोट कर लें और अपने जूम वाली जो क्लास होगी उसमें फिर आप ये पूछ सकते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चंस रह गए, इस क्वेश्चन नंबर 2 की जितने भी पार्ट्स रह गए वो आपके होमवर्क है, वो आपने खुद करने हैं। सारे इसी तरह क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन खुद कर लिए, 2 आपके लिए छोड़ दिए, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।